Well, hello once again, everyone. As we all know that there are a lot of farmer-related meetings happening in the ministry. So minister is busy in the meeting, but we have got a word from his office that he will be joining soon. In the meantime, I would like to just run through a program with you all so that you all know what all we have in store for you. So the inauguration time normally was 11 to 12 p.m. today. And after 12 o'clock, we will have one first technical session, which will be on opportunities in food processing. And this program will be moderated by Shri Dr. C.D. Mai, and we have various officials from government and various organizations as a panelist in this program, as you can see the names on your screen. After that, there'll be a another session on discussion on food safety and quality issues in food processing. It will be moderated by Ms. Neerja Hajela, and again we have representation from FSSAI, CFTRI, FDA, and FIWA. There is this association, and Shehadri Farm in this particular session. The third session will be from 3 to 4:30 p.m. It will be moderated by Shri Bhagirath Chaudhary ji. And here we have, the representation from APEDA, Rasna Group, Amul, All India Rice Exporters Association, IOPEC, and Exim Bank. And the topic of this session is, issues of marketing and exports of processed food. And the day will end with this session. And the second day will start with another wonderful session, that is a role of food parks in promoting processed food. So this would be moderated by Dr. Mandina Chawla, and this would start at around 10 o'clock in the morning and would end at around 11:30 a.m. The second session of the second day would be a technical session 5, and this will be the discussion on food processing machinery and technology. Again, we will have a representation from IIF, PT, NIFTIM, and there is AFTPAI, Mariental India Private Limited, Bajaj Process Pack Limited, Control Infotech Private Limited. This session will be moderated by Ms. Deepti Barwe. And the last session, which is session number 6, will be on food losses, wastage, and technology to mitigate them. This would be moderated by Shri Pradeep Sridharan, and we will have representation from CIFET, that is Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, Frick India Limited, Superb Group Renewable Energy, GPS Renewable Company, Ecozen Solution, Bharat Krishik Samaj, and then all the sessions will end here, and we'll have a valedictory program at around 3:15 p.m. tomorrow. And the vote of thanks will be given by Dr. C.D. Mai. So this was a brief overview of the sessions that we have planned during this virtual summit. And as I said, the minister will be joining soon. So I thank you for your patience, and we will be starting the session soon. Thank you once again. Well, good morning all. On behalf of AgroVision Foundation, I, Vibha Bhatia, welcome our guiding force and Chief Patron of AgroVision, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, and our Chief Guest, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister for Agriculture and Farmer Welfare, Rural Development and Panchayati Raj, and Food Processing Industries, Government of India. So Mr. Tomar will soon be joining with us. And we have with us Shri Ravi Boratkar ji, his President, AgroVision Foundation, and Dr. C.D. Mai, Secretary, AgroVision Foundation. And further, I welcome all our honorable speakers from various sectors who have made themselves available for this virtual summit. And at the same time, I also extend my warm welcome to all our sponsors and exhibitors, and most importantly, our delegates for the Agro Food Processing Virtual Summit. So we start this program, and I invite Mr. Ravi Boratkar, President of AgroVision Foundation, for his welcome remarks. Mr. Boratkar. Good morning to everyone. And I think very soon we'll also be joined with the minister, as Vibha already mentioned. So we expect them to log in at any time. In fact, for this Agro Food Processing Summit, which is organized by AgroVision Foundation, AgroSpectrum, and MM Active, I extend once again my warm greetings. And I'm sure
during this, the latter part of the day today and tomorrow, we shall have a very meaningful deliberations, as we have a proper mix of speakers with us. That we have, of course, the major policy makers, because Shri Nitinji Gadkari and Shri Narendra Singh Ji Tomar together are looking after the major ministries which are very key for the farmers. That is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing and Industries, and Ministry of Rural Development and Panchayati Raj with Mr. Tomar himself, and of course a very important Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is with Mr. Gadkari. And we also have a good participation from the industry captains and senior executives of the private sector, which will of course be sharing their experiences with us, and also be voicing their concerns or demands from the government for further facilitating this sector. And I'm sure these deliberations will be of great help and good as a guidance point to many youngsters and startups, many entrepreneurs or would-be entrepreneurs who are with us today, because we see a great interest in them to come to this sector. So the experiences of the senior executives from the industry and opportunities and detailing of the various schemes by the senior officials of the ministry will be very important for them. And here I would like to, in a brief, tell you something about the AgroVision Foundation. As you are all aware, AgroVision Foundation, under the guidance of Honorable Shri Nitin Gadkari ji, for over a decade now, is working towards farmers' education, encouragement and empowerment, mainly in central India and particularly in Vidarbha. For almost last 11 years now, we are doing a great summit called AgroVision, which comprises of a major national expo. We conduct free workshops, almost 25 to 30 every year, and the relevant conferences on the relevant topics, 1 or 2 every year. In this mega exhibition, we have a participation of almost, it's visited by at least 3 to 4 lakh farmers every year. And through our workshops, we educate a minimum 50,000 to 60,000 farmers every year. And I'm happy to tell you that even during this period of lockdown, we have conducted more than 20 webinars, and we have had 11 farmers interactions, which was very meaningful and very good discussions, deliberations we had. And in fact, that there lies the inspiration for the today's agro food processing conference, because many of them have shown interest, particularly youngsters who are coming in agriculture or who want to be in agri entrepreneurs, and of course to the many progressive farmers who are now seeking for a better or enhanced value for their agri produce. They all feel that there is a great need for more improvised supply chain management systems, cold storages, and they all know that this will only be possible if there are more units being set up in agro and food processing in the region. Fortunately, what we have seen in the last few months is that there are good positive steps from the ministries trying to encourage this sector. And there we look forward today to the guidance of both these ministers, that what they have to offer to further encourage either investments or entrepreneurs coming up and setting up more number of these processing units,
and also how it is going to facilitate the existing processing unit to do the further expansion. And I think once this entire ecosystem is formed, it's going to benefit not only farmers, but it's going to have its cascading effect also. So as the AgroVision Foundation and AgroSpectrum, we thought, since in the first decade we have concentrated more on basic education and encouragement of the farmers, that we have conducted various workshops, as I mentioned earlier, but they were mainly about enhancing the yield of their crops or produce. Then it was also about telling them about the alternative cropping pattern in this region, and how can they adapt or how can they use technology and modern farm practices in day-to-day work. We also conducted workshops about the water conservation and water management, so that per drop more crop is what they can achieve. And most importantly, through our workshops, for strengthening their sustainable livelihood, we encourage them for a supplementary activities like goat farming, backyard poultry, fisheries, beekeeping, sericulture, and similar activities. And what we have found that that has also it's working out well. We have seen more number of such activities happening in this region. One good example can be told about the milk in this particular region near Nagpur, that mother dairy coming up to NDDB, setting up a plant, and now the milk collection in the region has gone up. So we look forward that maybe in the coming days, AgroVision Foundation will work hard, will conduct many such activities, or if needed, more comprehensive activities for encouraging young entrepreneurs and other stakeholders to come forward and to build this ecosystem in which it's not only that more such units are set up, but the entire supply chain management and the entire ecosystem, which will ultimately be of great help to the farmers, is being set up. And here I will also like to, welcome my colleagues, Dr. C.D. Mai, who is chairman of the National Advisory Committee of AgroVision and is the secretary of our AgroVision Foundation. We have been doing many activities under his guidance, and also my other colleague, Mr. Ramesh Mankar, who is here. He is the organizing secretary for this activity. So I look forward that in the coming 2 days, like today and tomorrow, deliberations, deliberations. I'm sure through this will be reaching, will have to reach, because this I think is shown also live on a Facebook of the minister's pages. So other than those who are logging in for the conference, many others can also see this. So with this, I once again welcome all my speakers, whose contribution is going to be very immense. Those who are going to speak today and tomorrow, both from government sector and the private sector. And also to those youngsters who are joining in as a delegate and who want to know something and who want to do something. So I welcome them and I also wish them all the best. And with this, I now look forward to the dignitaries joining us and taking this further. May I now request our guiding force and chief patron of AgroVision, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, to share his words in presidential address. Sir, over to you. सभी उपस्थित एग्रो फाउंडेशन के सभी सम्मानीय अतिथिगण
और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश में हमारे जीडीपी में 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से मिलता है और 48% एक्सपोर्ट्स ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं और आने वाले 5 साल में हम 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, इसमें विशेष रूप से जो हमारा कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा फॉरेस्ट का क्षेत्र है जिसको हम ट्राइबल्स वहाँ मैक्सिमम है, और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोग पिछड़े हुए हैं। गरीबी और भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण वो सब लोग बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं और जिसके कारण शहरों में भी इम्बैलेंस पैदा हुआ है। मैं निश्चित रूप से इसका उपाय यही है कि हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर अभी 80,000 करोड़ है और 5 साल में ये टर्नओवर हमको करीब, हम ये सोच रहे हैं कि ये 5 साल में ये टर्नओवर हम करीब 5 लाख करोड़ करेंगे। अब ये 5 लाख करोड़ अगर करनी है तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में हमें जो कुछ करना पड़ेगा उसकी अलग नीति बनानी पड़ेगी। इसमें से 2 प्रमुख प्रकार के कार्यक्रमों की मैं अक्सर उल्लेख करता हूँ। हम लोग बायोफ्यूल में ग्रामीण क्षेत्र में 1000 डिस्टिलरी ओपन हो, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास 280 लाख टन, आदरणीय तोमर जी भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे 280 लाख टन हमारे गोडाउन में चावल पड़ा हुआ है और ये चावल अभी पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर सकते इतना है और इस साल का ऐड होगा। तो चावल, कॉर्न, इससे अभी हमने इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। तो विलेज इंडस्ट्री का एक बड़ा टर्नओवर इसमें बढ़ सकता है और जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा। इसमें कितनी बड़ी डिमांड है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास पेट्रोल में 10% जब इथेनॉल हम डालते हैं तो हमको करीब 1600 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, जबकि हमारे पास केवल 450 करोड़ इथेनॉल अभी तक मिलता है। फिर ये 10% करने के लिए जब ये 22% करेंगे तो हमको 3500 करोड़ लीटर लगेगा और इसमें शॉर्टेज है। फिर अब डीजल में भी 10% हम डालने की बात कर रहे हैं, उसकी भी ट्रायल्स पूरी हुई है, तो उसके लिए कम से कम 5000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। और अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने आग्रह किया था, टीवीएस, बजाज, इन्होंने 100% इथेनॉल पर की बाइक्स तैयार की है, तो उसके लिए भी इथेनॉल के पंप हम लोग कर रहे हैं और आज शाम को मेरे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मीटिंग है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर की एक इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की, ये जो इथेनॉल की बनेगी इसमें 1 लाख करोड़ किसानों की जेब में जाएंगे। और इसलिए एमएसएमई और कृषि मंत्रालय और हम सब लोग मिलकर, क्योंकि इथेनॉल की डिस्टिलरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 करोड़ का 65,000 लीटर के प्लांट होता है, वो एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा और उसमें कृषि विभाग का भी वो सहयोग मिलेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो उनका भी मिलेगा और ऐसी 1000 डिस्टिलरी कम से कम आने वाले 2 साल में स्थापन करने का उद्दिष्ट रखकर हम लोगों को एमएसएमई की तरफ से मदद कर रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिसके लिए बहुत सी बातों का प्रमोद मैं उल्लेख अभी तोमर जी अपने भाषण में करेंगे। एक तो ऐसा है कि खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग को हम सनराइज सेक्टर के रूप में मानते हैं, क्योंकि भारत में इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए बहुत अवसर है। भारत का फूड और ग्रोसरी किराना मार्केट दुनिया के 6ठे क्रमांक पे है और फूड तथा ग्रोसरी का रिटेल मार्केट भारत के संपूर्ण रिटेल मार्केट का 65% है। इस इंडस्ट्री में निवेश के साथ यह क्षेत्र विकसित होगा तो रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। मैं तोमर जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके मंत्रालय ने
जरूरत कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना भी जाहिर की है। सरकार ने मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत 37 फूड पार्क मंजूर किए हैं, जिनमें से 20 शुरू हो चुके हैं और 17 पार्क का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि ये फूड पार्क्स जो है, इनके प्रमुख लोगों की एक मीटिंग आप जरूर बुलाइए, क्योंकि सरकार की गाइड्स, नियम और कुछ ऐसी अड़चनें आ रही है कि इसमें काम करने में काफी दिक्कत आ रही है। तो एक बार आपके सामने ये समस्या आएगी, आपके और आपके सेक्रेटरी के सामने, तो इसमें बहुत जल्दी गति मिलेगी और 2024 तक फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में $33 बिलियन का निवेश आना अपेक्षित है। जब हम इसको ठीक प्रकार से अगर इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो ये होगा और इससे 1 करोड़ रोजगार भी खड़ा होगा। 2025 तक फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र करीब $0.5 ट्रिलियन का बन जाएगा। 2030 तक खाने के सामान की जरूरत बड़े पैमाने में बढ़ेगी और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बनेगा। इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100% विदेशी निवेश को भी मान्यता दी है। फूड प्रोसेसिंग की स्कीम्स कई तरह की है, जिनमें मेगा फूड पार्क तो है ही है, पर फूड पार्क स्कीम में प्रोजेक्ट कास्ट के 50% ग्रांट भी दी जाती है। इसका लाभ फार्मर्स, प्रोड्यूस कंपनी जैसे एसपीवीज को ले सकते हैं। कोल्ड चेन स्कीम, प्री कूलिंग स्कीम, कोल्ड स्टोरेज स्कीम इत्यादि सबको सरकारी ग्रांट भी मिलती है। पर यह सब स्कीम का इवैल्यूएशन, जो इसका फायदा ले रहे हैं उनकी दिक्कत और समस्याएं क्या है, इसके बारे में सरकार की तरफ से उनसे बातचीत करने के लिए मैं तोमर जी से प्रार्थना करूंगा। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स में है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तैयार होना चाहिए। भारत की समस्या ऐसी है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है और अल्पभूधारक होने की वजह से वे लोग अपने उत्पाद को मार्केट में हमेशा नहीं ले जा सकते, ऐसा मानना भूल होगी। इसलिए जरूरत है कि बड़ी संख्या में किसानों की कंपनियां व समूह फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए, जिसके लिए कृषि मंत्रालय ने पहल की है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। यह कंपनियां खुद फूड प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग भी कर सकती है। इसके अलावा वे बढ़ते फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के सपोर्ट भी कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण या विस्तार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भी योजना है। एफपीओज के साथ साथ एनजीओज, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, कारपोरेट्स या प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इस स्कीम का लाभ ज्यादा ले सकते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, दूध, मीट, पोल्ट्री, फिश, रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड आइटम्स, आटा, दालें इत्यादि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के तहत प्रोजेक्ट कास्ट भी 35% निधि केंद्र सरकार द्वारा सहायता के तौर पर दिया जाएगा और एफपीओस के साथ साथ एनजीओ, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, कारपोरेट्स या प्रोप्राइटरशिप फंड भी इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, मैं तोमर जी आपसे अभी एक अच्छा अनुभव बताऊंगा कि मैंने इसमें इंटरेस्ट लेकर हमारे क्षेत्र के किसानों के प्रगति के लिए, हमारे यहाँ नागपुर के ऑरेंज की कीमत 12 रुपए किलो थी। हमने उसको अच्छा ऑरेंज तैयार करके क्वालिटी का पैक करके दुबई में 6 कंटेनर अभी तक भेजे हैं और उनको 32 रुपए किलो भाव मिला है और आने वाले समय में और 25 कंटेनर भेजने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी ओर हमने एक कोशिश की है कि हमारे यहाँ से 20 कंटेनर सब्जियां दुबई भेजते हैं, वो भी किसानों की लेकर, और उसमें अभी हमको एक्सपांशन करना है और मशीन लेना है, क्योंकि डिमांड बहुत है पर हम दे नहीं पाते। पर हम लोग कनाडा में भी 7 कंटेनर नागपुर से भेजने लगे हैं। तो अभी वो ऑर्गेनिक में करने के लिए पोखरा करके जो योजना है, उसमें मैं 10 ग्रीन हाउस किसानों को देकर मिनिमम 100 रुपए के किलो के भाव से वो सब्जी खरीदी करके इसको हम आईक्यूएफ में डालकर इसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें काफी अच्छा प्रोत्साहन आपके ओर से मिलता है, पर कुछ दिक्कतें हैं। अगर आपने सबको बुलाया और उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की चर्चा आपके साथ हो जाएगी तो मुझे लगता है इसका समाधान हो जाएगा। ऐसे हर जिले में यूनिट स्थापन होने चाहिए, सक्सेस स्टोरी बननी चाहिए। हर जिले में केवल एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को मान्यता दी जाएगी। ये इसमें और ज्यादा भी बनते तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें हर जिले की फसल अलग अलग प्रकार की है। कहीं ऑरेंज का होगा, कोई सब्जियां होगी, कहीं टमाटर ज्यादा होगा, कहीं और कोई फल है। उत्तराखंड में वटाना जो है, ग्रीन पीस, इसके बारे में होगा। तो ये प्रक्रिया से अलग अलग जगह करनी पड़ेगी।
for backward forward linkage scheme, food safety and quality assurance infrastructure, research and development scheme, ऐसी भी स्कीम लागू होनी चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजना है और इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है। पर तोमर जी, इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियां इसको कमर्शियल रेट लगाती है, कभी कभी 9 रुपए यूनिट तक बिजली जाती है, तो ये वायबिलिटी नहीं हो पाती। तो हमें ये जो एनटीपीसी राज्य सरकार को बिजली देता है वो 3 रुपए 2.5 रुपए भाव में देता है। क्या भारत सरकार ऐसी कोई योजना बना सकता है क्या कि कोल्ड स्टोरेज के लिए, किसानों के लिए, इसके लिए प्रोसेस के लिए जो ऐसी बिजली जाएगी, इसमें हम लोग करीब 3.5 रुपए के 4 रुपए के ऊपर नहीं लेंगे। वो भारत सरकार की तरफ से इसके बारे में कुछ हो सकता है क्या, तो पावर मिनिस्ट्री के सहयोग से इसमें आप करिए। बीच में मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमने हमारे यहाँ से 41 गाड़ियां संतरा रेलवे की रैक हमने बाहर भेजी और आपने भी ये घोषित किया है कि 50% फ्रूट वेजिटेबल के ट्रांसपोर्ट में आप सब्सिडी देंगे। मैंने उस समय ये आपके फूड मंत्रालय को ये सुझाव दिया कि आप ये किसानों को देने के बजाय रेलवे को ही दो। अगर रेलवे का किराया अगर 10,000 होता है तो 5,000 रुपए आप वहीं के हुए उनको फ्रूट वेजिटेबल के लिए आप रेलवे को करो। ये रेट टाइपिज्म में समय लगता है, ये बच जाएगा। और रेलवे ने उस बात को और आपके मंत्रालय ने मान्य किया। अब 50% सब्सिडी मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बाम्बू ये भी ग्रास है और अभी अगरबत्ती का काम देश में हो रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू काटना, बाम्बू लाना और इसको ट्रांसपोर्ट करना रेलवे से, तो ये करने से अगरबत्ती की इंडस्ट्री बढ़ सकती है, जिसमें 4,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। तो जैसे फ्रूट और वेजिटेबल को आप सब्सिडी दे रहे हैं, ये बाम्बू पूरे देश में जाने के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर आपने सब्सिडी दी तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा और अगरबत्ती और बाम्बू से काफी रोजगार खड़ा होगा। तो इसके लिए भी आप जरूर विचार करिए, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। ये जो रेल मंत्रालय के बारे में जो स्कीम चालू हुई आपने, जिसमें 50% सब्सिडी दी, 15 किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से अभी तक संतरा बांग्लादेश और इधर उधर भेजा गया है और बड़े प्रमाण पर ये यशस्वी हुई है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके कारण हमारे विदर्भ के किसानों का फायदा भी हुआ है और रेलवे विभाग को करीब 1 करोड़ का राजस्व केवल विदर्भ से मिला है। विदर्भ के साथ साथ किसानों को अपना उत्साह देश के अन्य भागों में भी भेजना सस्ता पड़ा है। अभी बेंगलोर और चेन्नई, यहाँ भी हम संतरा भेजने की योजना बना रहे हैं, जिससे भाव मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा कि इस योजना का नाम है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ का निधि जा रहा है और इस निधि की मदद से किसान उत्पादन तथा मार्केटिंग से संबंधित सुविधाओं को लाभ ले सकते हैं। अगर 2 करोड़ रुपए बतौर ऋण दिए जाते हैं तो सरकार इसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है और 2 करोड़ तक के ऋण के ब्याज पे 3% छूट भी जाती है। इस स्कीम के तहत गोदाम, साइलोज निर्मित, छाननी, ग्रेडिंग यूनिट्स, पैक हाउस की निर्मित, आपूर्ति श्रृंखला, शीतगृह श्रृंखलाओं का निर्माण होना अपेक्षित है। प्राथमिक कृषि प्रक्रिया केंद्र की स्थापना, बीज से बाजार तक दृष्टिकोण सशक्त करना, यह उसके उद्देश्य भी है। में कृषि उद्योजक, एफबीओ, कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह अल्पभविक इसका लाभ भी ले सकते हैं। और एक प्रयोग हमने विदर्भ में किया था और जो यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा कि हमारे विदर्भ में दूध होता था, पर किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। प्राइवेट खरीदारी होती थी और उनको भाव नहीं देते थे, जिससे किसानों की मेहनत, मुआवजा उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता था। हमने नागपुर में मदर डेयरी का यूनिट लगवाया, जो जैसे कमाल हो गया कि अब तक किसानों को कम भाव देकर उनका शोषण किया जा रहा था। अब मदर डेयरी शुरू होने के बाद चूंकि वो कम से कम 25 रुपए लीटर भाव दे रहा था, तो अभी तक 17-18 रुपए देने वाले प्राइवेट खरीदारों को भी वो भाव देना पड़ा और किसानों का फायदा हुआ। किसानों का दूध भी खरीदा जा रहा है, 3.5 लाख लीटर पर डे विदर्भ में हो रहा है। मैं उनको 30 लाख लीटर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब निश्चित रूप से मदर डेयरी का प्लांट भी नागपुर में है, रोजगार भी प्राप्त हुआ, जिसमें टैंकर चालक और बाकी लोगों को भी 25,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। विदर्भ में विश्व बैंक पुरस्कृत पोखरा योजना के तहत भी हमने एक योजना शुरू की है कि 1 एकड़ में ग्रीन पॉली हाउस के प्रमाण में हम 10 पॉली हाउस किसानों को उनको प्रायोगिक तत्वों पर तैयार करके हम देने वाले हैं। उसमें ऑर्गेनिक पद्धति से सब्जियां उगाई जाएगी और वो सब्जियां IQF प्रोसेस के बाद उन्हें विदेशों में निर्यात किया जाएगा।
इस पॉली हाउस में खड़े होने के बाद अगले चरण में 100 पॉली हाउस निर्माण करने का प्रस्ताव है। पोखरा सिंह का लाभ एफसीओज और स्वयं सहायता समूह अल्पोदर किसान ले सकते हैं और अल्पधारकों को 75% अनुदान दिया जाता है। मैं निश्चित रूप से ये काम आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बातें केवल मैं आपके लिए रखूंगा कि हमारी ये जो मेगा फूड पार्क की योजना है, इस योजना में 60 से 75% भूखंड को पट्टे पर देने की शर्त का अनुपालन करना पड़ता है और ये 60 से 75% भूखंड जब किसी को देना है तो इस पे 18% जीएसटी लगता है। अब इसके कारण तो ये योजना ही फेल हो जाएगी। अगर जितना आप इंसेंटिव दे दे रहे 18% जीएसटी अगर भरना पड़ेगा तो कहाँ से हो पाएगा। तो एक बार ये मुझे लगता है उनको बेचने की अनुमति दे दो या ऐसी कोई करो कि इनको रजिस्ट्री से या जीएसटी से एग्जाम्पशन मिले, ऐसी कोई बात करो तो ये ठीक होगा। ये बैलेंस ग्रांट मिलने में इसमें बहुत देरी हो रही है इसके कारण और उद्योगों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है और ये करना बहुत कठिन है 18% जीएसटी। तो ये बेचने की अनुमति देना है तो ज्यादा इसका प्रॉब्लम आप एक बार समझ लीजिए, यही मेरी आपसे एक प्रार्थना है। विशेष रूप से और एक बात मैं आपको कहूंगा कि मेगा फूड से जुड़े लोगों की उद्योगों में तरलता और नकदी प्रवाह के सुधार के लिए भी कुछ विशेष उपाय में शर्तों में जो शर्तें हमारे यहाँ गाइडलाइंस बन जाती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इसमें गाड़ी आगे जाती नहीं। हम ऊपर में पॉलिसी बना देते हैं और शर्तों में ऐसे ऐसे नियम जोड़ देते हैं इफ्स एंड बट्स के कि जिसमें कोई काम ही नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है इस पे आप एक बार अगर आपकी बात हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये बातें भी क्लियर हो जाएगी। नाबार्ड की अपेक्षा की जाती है कि मेगा फूड पार्क को रिफाइनेंस करने में मेगा फूड पार्क को व्यवहार्य बनाने के लंबी अवधि की आवश्यकता है और अव्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए धन की लागत प्रमुख कारक है। वर्तमान में एमएफपी पर बैंकों की विभिन्न वित्तीय संस्था वार्षिक ब्याज 11 से 12% तक लिया जाता है। ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक माइक्रो फाइनेंस फर्मों में पुनर्वित्त के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मैं सिडबी द्वारा एमएफपी के लिए ऋणों को पुनर्वितरण में शामिल किया जा सकता है, जो कि आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित दिनांक 17 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के अनुसार है। इस निर्णय से पार्कों के लिए ब्याज लागत में पर्याप्त कमी आएगी और देश की परियोजना में व्यवहार्यता में सुधार होगा। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और इस योजनाओं को गति देने के लिए केवल 37 नहीं तो 500 फूड पार्क इस समय देश में शुरू होने चाहिए। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। हर राज्य के प्रमुख शहरों में जैसे प्याज है, प्याज सीजनेबल है और जब प्याज सीजन में आता है तो 2 रुपए किलो भाव होता है और बाकी समय 70 और 80 रुपए होता है। तो क्या देश के सभी बड़े बड़े शहरों में प्याज को स्टोरेज करने के लिए कोई विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई स्टोरेज सिस्टम आ सकती है क्या? ये भी लॉन्च अगर करेंगे तो प्याज की कीमतें कम नहीं होगी। जब कम होगी तो ये सब लोग खरीदी करेंगे और प्याज का स्टॉक अगर रहेगा तो मार्केट भी स्टेबल होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्टोरेज के बारे में साइलोज बनाना, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और उसमें बिजली के खर्चे के बारे में, बाकी इंसेंटिव, जगह, ये सब प्रैक्टिकली इकोनॉमिक वायबिलिटी और ये वायबिलिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इसमें प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। तो इसके प्रैक्टिकल और ग्रासरूट लेवल पे जो प्रश्न और समस्या है वो आपके सामने एक बार आए, इसलिए आज का कार्यक्रम का आयोजन हमारी एग्रो फाउंडेशन की ओर से हमने किया है। आपको पता है कि हम हर साल इसका बहुत बड़ा एग्रो विजन करते हैं। वो जनवरी महीने में करते थे पर इस साल कोविड के कारण नहीं कर सके। 11 साल हमने किया है, इस साल 12वां साल था पर अभी इस साल अभी तक नहीं कर पाए। अभी वैक्सीन मिल जाएगा और परिस्थिति आएगी तो सोचेंगे। पर इस निमित्त हर बार 3.5-4 लाख किसान आते हैं, 40 वर्कशॉप होते हैं और हम आपके डिपार्टमेंट की योजनाओं को किसानों के पास पहुंचाकर निश्चित रूप से उनको मदद करने की कोशिश भी करते हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं विदर्भ से हूं और मैं अपने जीवन का अब आगे का ज्यादा से ज्यादा समय किसानों के पुनरुत्थान के लिए देना चाहता हूं ताकि किसान की परिस्थिति में कोई बदल हो और निश्चित रूप से आपके सहयोग से इस परिस्थिति को बदलने की हम कोशिश करेंगे। आप काफी व्यस्त हैं और आज किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसके बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार डिटेल में ये फूड पार्क वालों को बुलाकर उनके प्रैक्टिकल बातों को समझाइए, आप करिए और अगर आप अनुमति देंगे तो मैं भी आपके साथ उस मीटिंग में जरूर शरीक होने के लिए आऊंगा
और आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम इसको गति देने की कोशिश करेंगे। मैं इथेनॉल के बारे में भी आपने एक 1000 डिस्टिलरी बनाने का एक अच्छा प्लान एमएसएमई की तरफ से मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर तैयार करेंगे। तो देश में ये चावल, कॉर्न जिसकी कीमत अब कॉर्न की कीमत करीब 1700 रुपये एमएसपी है और मार्केट 1000 और 1100 पे है। अगर हम इथेनॉल बनाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। अब राइस में भी आज बहुत स्थिति खराब है, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का एक तरफ इंपोर्ट कम होगा और दूसरी ओर गाँव में रोजगार निर्माण होगा, पोल्यूशन कम होगा और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो मैं आपको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir, for such inspiring address. So now may I request our chief guest, Honorable Shri Narendra Singh Tomar ji, Minister for आज हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारत के वरिष्ठ मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री, मेरे अग्रज माननीय श्री नितिन गडकरी जी, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, विनीत अग्रवाल जी, दीपक सूद जी और इस अवसर पर उपस्थित एसोचैम के सभी पदाधिकारीगण और इस वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मिलित सभी उपस्थित सज्जनों और महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस अवसर पर आप सबके मध्य आपसे चर्चा करने का जो अवसर प्राप्त हो पा रहा है, उसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी नए नए प्रयोग करने के लिए हमारे देश में जाने जाते हैं। क्षेत्र कोई भी हो, जिस क्षेत्र में भी काम करने की जिम्मेवारी उनकी होती है, वह क्षेत्र नए आयाम प्राप्त करे, इस दिशा में नितिन जी का बहुत ही योगदान रहता है। लेकिन साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में नितिन जी की बहुत रुचि है और लगातार उनकी कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत अच्छी हो। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयोग सफलतापूर्वक किए हैं और उनका लाभ विदर्भ के किसानों को भी मिल रहा है और उनसे मार्गदर्शन लेकर देश को भी मिल रहा है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और मैं इस अवसर पर नितिन गडकरी जी के इन प्रयत्नों का बहुत ही स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि एसोचैम की एग्रो विजन का यह कार्यक्रम नितिन जी के मार्गदर्शन में हर साल होता है और बड़ी मात्रा में किसान इसमें जुड़ते हैं। अनेक प्रकार की कार्यशालाएं होती हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से उस क्षेत्र के किसानों को बहुत मिला है। पहले भी एक बार मेरा जाना हुआ, लेकिन आज कोविड संकट के कारण यह वर्चुअल हो रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर आप सबके साथ जुड़कर निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की माननीय गडकरी जी को सुन रहा था, तो उन्होंने कई अपेक्षा फूड पार्क
के विषय में भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। फूड पार्क देश में बड़े पैमाने पर बने, इसकी आवश्यकता प्रतिपादित किया। रहते हैं और निश्चित रूप से वो अपना स्टॉक कर सकें, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज और उसकी टेक्नोलॉजी, उस मामले में भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और परिवहन सब्सिडी बांस उद्योग को भी मिले, यह भी उन्होंने इस अवसर पर कहा है। और साथ ही साथ ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनते हैं, उसमें जो बिजली की व्यवस्था वाला विषय है, वह रेट्स ज्यादा होने के कारण वायबिलिटी नहीं आ पाती है, वह विषय भी उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि नितिन जी ने जो विषय इस कार्यक्रम में रखे हैं, वो सभी कृषि से संबंधित है, किसान से संबंधित है, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। और इस दृष्टि से मेरी कोशिश होगी कि एक बार नितिन जी के साथ ही समय तय करके फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ एक बैठक हम लोग आयोजित कर लेंगे और उसके बाद आपके सारे सुझाव और उन पर चर्चा हो जाएगी और जो अच्छा किया जा सकता है वो निश्चित रूप से करने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में हम सबकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं का निराकरण हो, इस दृष्टि से लगातार भारत सरकार की ओर से कोशिश की जाती रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि खेती का क्षेत्र देश में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर पाए। लंबा बीता, निजी निवेश के द्वार खुले, इस बात की अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी बंधन अनेक प्रकार के लगे हुए थे और जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, वह प्लेटफॉर्म की जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। और इसलिए भारत सरकार ने नए रिफॉर्म किए, ट्रेड और कॉमर्स का कानून बनाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून बनाया, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में संशोधन, और इस दृष्टि से आज उसके अच्छे परिणाम भी परिलक्षित होने लगे हैं। कई जगह पर इन नए कानूनों का उपयोग भी होना शुरू हो गया है, उसका फायदा भी आने वाले कल में किसानों को मिलेगा। यद्यपि इस मामले में कुछ लोगों का मत कानूनों के विरोध में है, उन यूनियंस को भी बातचीत करके हम लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बदलाव लाने वाली है और उसका फायदा आने वाले कल में भारतवर्ष में कृषि को भी मिलेगा और किसान की आमदनी की दृष्टि से भी ये लाभप्रद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की जो बात की है,
उस दिशा में भी ये कदम निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी एफपीओ के मामले में भी माननीय गडकरी जी ने बताया था, निश्चित रूप से 10,000 नए एफपीओ बने, इस दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। लगभग गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, सीबीओ का चयन हो रहा है। मैं समझता हूं हमारे देश में बड़ी संख्या छोटे और मझोले किसानों की है। ये छोटे और मझोले किसान अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ सरकार की योजना के अनुसार ले पाने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन ये एफपीओ का जो नया संसार निश्चित रूप से बनने वाला है, एफपीओ के माध्यम से इस क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। एफपीओ पर भारत सरकार 5 वर्ष में 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। इससे किसानों की खेती का क्लस्टर के माध्यम से रकबा भी बढ़ेगा, उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उनके किसानी की लागत भी कम होगी। वो महंगी फसलों की ओर जाएंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा किसान को भी मिलेगा और खेती का जो योगदान है वो देश के जीडीपी में भी अधिक हो सकेगा। कृषि के क्षेत्र में और गांव के क्षेत्र में लंबे समय से इस बात की अपेक्षा थी कि निजी निवेश वहां तक पहुंचे। निजी निवेश तो हुआ है, तमाम सारे वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज भी बने हैं, लेकिन उनका उपयोग किसान के लिए नहीं हो पा रहा है। अभी जितना उपयोग हो रहा है और जितनी संरचनाएं बनी हैं, मुख्य रूप से व्यापारी ही उसका उपयोग कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अगर वेयर हाउस गांव के नजदीक होगा तो निश्चित रूप से किसान उसका उपयोग कर सकेगा। कोल्ड स्टोरेज गांव के नजदीक होगा तो किसान अपनी फसल को कुछ समय तक रोकने में सफल हो सकेगा। ये जो गैप्स कृषि के क्षेत्र में थे, ये गैप सरकार नहीं भर सकती। इसके लिए निजी निवेश की आवश्यकता की अपेक्षा थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी नाबार्ड ने शुरुआत की है और लगभग 3,000 पैक्स को 2,000 करोड़ रुपया लगभग स्वीकृत किया जा चुका है और इस पर काम शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये पैसा नीचे तक जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, एग्री स्टार्टअप के माध्यम से जब गांव तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा किसान को मिलेगा। इसी प्रकार से चाहे वो फिशरीज का क्षेत्र हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, हर्बल पार्क का मामला हो, फूड प्रोसेसिंग का विषय हो, तो ऐसे कुल मिला के कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र हैं उनके लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो फंड प्रावधानित किया है, इसका फायदा कृषि और संबंधित क्षेत्र को आने वाले कल में मिलने वाला है। आज क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों से देश भी जूझ रहा है, दुनिया भी जूझ रही है और आवश्यकता इस बात की है कि फसलों का विविधीकरण हो। इस दिशा में निश्चित रूप से सरकार बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है और एफपीओ और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होंगे। फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से जिस प्रकार से सरकार ने मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, एग्रोविजन
बाकी सारी चीजों पर काम प्रारंभ किया है वह धीरे धीरे परिणामकारी होने लगा है। अभी लगभग 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं, जिनमें से लगभग 20 पर कंप्लीट हो गए हैं और शेष कंप्लीट हो रहे हैं। ये जब से शुरुआत हुई है तब से कई स्थान ऐसे भी हैं जहां थोड़ा काम करना कठिन भी हो रहा है। मैंने भी प्रभार मिलने के बाद इस मिनिस्ट्री में जब मैं गया तो फिर मैंने कोशिश की कि इस योजना पर और बल देना चाहिए, तो कई कठिनाइयां भी सामने आई और उन कठिनाइयों पर निश्चित रूप से हम सब लोगों ने बातचीत भी की है, निराकरण करने की कोशिश भी की है और फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से आज जो माननीय नितिन गडकरी जी ने बात उठाई है उसका भी अपना महत्व है और उनके दृष्टि से भी हम लोग इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र के अर्थव्यवस्था देश की तरक्की और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था और कृषि की अर्थव्यवस्था यह देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान देने वाली है और इसलिए हम भारत सरकार की ओर से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जो योजनाएं की जा सकती हैं उनको करने का एक सदप्रयत्न हो रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी मौलिक आवश्यकता की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, इस दृष्टि से भी हम लोगों ने इस दिशा में काम किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में चाहे अधोसंरचना विकास का मामला हो, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मौलिक आवश्यकता की रसोई गैस के सिलेंडर का विषय हो, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धता का मामला हो, इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जब कोविड के संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बात भी की है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बड़ी भूमिका है और इस दृष्टि से मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसमें 5 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्च होंगे और इससे बहुत जो छोटी छोटी यूनिट हैं और छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आगे बढ़ने में निश्चित रूप से बहुत ही मदद मिलेगी और क्रेडिट लिंक सब्सिडी के जरिए 2 लाख सूक्ष्म और खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को लाभ पहुंचाने व एक जिला एक उत्पाद का दृष्टिकोण अपनाने के लिए लक्षित क्षेत्र में वह पहली योजना है। अब तक 30 राज्यों ने 683 जिलों में 141 उत्पाद ओडीओपी की सिफारिश की है, जिस पर निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का महत्व किसान को लाभ मिले इस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने कृषि उत्पाद का प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी कर सकें और उसका लाभ किसानों को मिले, इस दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की भी बड़ी भूमिका है और उस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एग्रोविजन नागपुर में मध्य भारत के कृषि शिखर सम्मेलन के नाम से पहचाना जाता है
और नितिन जी ने बहुत प्रयत्न करके इस पूरे कार्यक्रम को एक बड़ी ऊंचाई प्रदान की है। और मैं समझता हूं जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्याओं का भी बहुत विषय चलता रहता था और कृषि के क्षेत्र के लिए भी काफी प्रतिकूलता थी। लेकिन इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से जो किसानों का जुड़ाव इस कार्यक्रम से हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से नितिन गडकरी जी के विजन के अनुसार विभिन्न नए नए आयामों से किसान जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप हुए हैं, उसके कारण कृषि का क्षेत्र भी मुनाफे में आया है और कृषक के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। अभी नितिन जी कह रहे थे कि हम लोगों ने सब्जियां बाहर भेजना प्रारंभ किया है। मैं समझता हूँ यह बहुत ही अच्छा उपक्रम है और ये नितिन जी के इस दृढ़ संकल्प के कारण ही संभव हो सका है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कृषि शिखर सम्मेलन में नितिन जी का व्यापक दृष्टिकोण और उनके दृष्टिकोण के आधार पर इस पूरे सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो उन सब कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि के से संबंधित और उसके विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर 2 दिन में काफी गहन मंथन होगा और इस मंथन के अनुरूप निश्चित रूप से काफी किसानों को, निवेशकों को, नए उद्यमियों को दिशा मिलेगी और यह कृषि के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय नितिन जी को अपनी ओर से बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभावों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार मंथन अच्छे निष्कर्षों की ओर पहुंचेगा और इन निष्कर्षों का उपयोग भारत सरकार भी करेगी और कृषि के क्षेत्र में जो आज सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा होती है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। पुनः एक बार माननीय नितिन जी को भी हृदय से धन्यवाद और बाकी सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर एड्रेस और हमें प्रोत्साहित करने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप ऑनरेबल श्री नितिन गडकरी जी एंड आपसे कि आप हमारे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करें। कैन वी हैव अ ऑडियो एंड वीडियो ऑफ एग्जीबिशन प्लीज? यस सर। Thank you, sir. Now, may I request Dr. C.D. Meyer for his closing remarks, please. Dr. C.D. Meyer. आज एग्रोविजन फाउंडेशन की तरफ से एग्रो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर जो हमारा वेबिनार समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है उसमें बड़ी खुशी है कि आज 2 दिग्गज आज हमारे बीच उद्घाटन के लिए आए हैं। माननीय नरेंद्र जी तोमर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समय में जो अभी किसान का आंदोलन चल रहा है उसमें टाइम निकाल के उन्होंने हमें इसमें इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें मार्गदर्शन किया और उनके मार्गदर्शन के इसमें हमें आज ये जो 2 दिन हम वर्चुअल समिट ले रहे हैं इसमें हम उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए उसके ऊपर चर्चा करें। आज हमारे जो पैटर्न है जो एग्रोविजन फाउंडेशन को मार्गदर्शन करते रहे हैं माननीय नितिन जी गडकरी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भी अपना समय देके आज उन्होंने जो कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो बताई है
कि जिस तरीके से हम अपने किसानों का उद्धार कर सकते हैं, उसके बारे में जो कुछ टिप्स दिया है वो तो हम फॉलो करते ही है, लेकिन उसमें पूरे देश में ये जो एक चेन बननी चाहिए, उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि आज ये जो हमारी शुरुआत हुई है और पहली बार हमने ये वर्चुअल एग्जीबिशन हम कर रहे हैं, हर फूड प्रोसेसिंग में जितने लोग इन्वॉल्व है, आज उनके आप देखेंगे ये स्टॉल हमने इसमें लगाए हैं, और वो स्टॉल में आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपको कई चीजें उसके बारे में पता होगी। और ये जो सब जो अभी एग्रोविजन की तरफ से हमने आयोजित किया है, उसका लाभ हमारे किसान भाई और जो इंडस्ट्री वाले हैं वो लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से मैं हमारे आदरणीय तोमर जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और इसके साथ ही हमारा जो इनॉग्रल सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you, Dr. Mai, for your closing remarks. Thank you very much.